Bismillahirrahmanirrahim. I formally welcome you to this orientation session. And in today's orientation session, we are basically going to talk about following objectives, which include but are not limited to. Number first is how to prepare for competitive exams, maybe PMS, maybe CSS, or whatever exams that have an inherent component of being descriptive exams. Second, हम बात करेंगे the questions associated with the preparation of all these particular examinations, which include, for example, how to make notes, how to prepare a topic, how to select your subjects, and how to select your options. आई होप कि आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने रिसेंटली सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो पास किया होगा. तो आई थिंक दिस सेशन वुड पर्टिकुलरली बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ देम, ताकि ब्रॉड जो डायनामिक्स हैं वो आप समझ लें. वो सारे एग्जाम में एक ही होती हैं, बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो डिफर कर सकती हैं, वो वेरी कर सकती हैं. तो इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट अगर मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड्स पे दिखा दूं, स्लाइड्स पे समझा दूं. दैट वुड गिव यू a better way of actually understanding things. So here we move. Okay, after a formal welcome, let's see what we are going to discuss. We are going to discuss CSS 2020, and let's say the preparation of PMS is included in that. What should be the path? What should be the plan? What are the pens and what are the players at the end of the day? The objectives include, we will talk about what are the prerequisites for exam. इसमें हम बात करेंगे कि आप में से जो लोग CSS की तैयारी या PMS की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें किन चीज़ों को एक बेस बनाना चाहिए ताकि अपनी जो तैयारी है वो इफेक्टिव मैनर में कर सकें. क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं प्रिपरेशन के लिए, we will not be able to actually direct our preparation in the manner it actually requires us to actually do so. Secondly, what is the roadmap? For example, we have seen a lot many candidates preparing for the competitive exam. Engineers हैं, doctors हैं, social sciences के background से लोग हैं, law करने वाले हैं, economics वाले हैं. Name anybody जो कि who is somebody या जो कि कुछ ना कुछ वैसे लिखना पढ़ना जानता है, तो you would see that he or she is basically preparing for the competitive exam. But out of all those candidates, only few know what is the roadmap or how to actually prepare for this particular exam. So we will also talk about the roadmap कि आपने जो तैयारी करनी है उसमें किन phases से गुजरना होगा और finally आपकी तैयारी अपने conclusion पे पहुंचेगी. आपने एक सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, एंड व्हाट शुड बी द रूटीन. बड़ा मसला होता है हमारे साथ कि हमें जो 24 घंटे मिले होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम किस तरीके से उन्हें इफेक्टिवली यूटिलाइज करें. जो मेजर फ़र्क एक सीरियस कैंडिडेट का एक आम कैंडिडेट से जो कि जिस चीज़ से आता है वो है द मैनर इन विच यू यूटिलाइज योर टाइम, द मैनर इन विच यू एक्चुअली मैनेज many conflicting interests, and the manner in which you actually formulate a comprehensive strategy that helps you out in cracking a particular subject. फिर एक और इशू हमें नज़र आता है कि काफ़ी लोग चलें रिटर्न पास कर लेते हैं, इंटरव्यू भी पास कर लेते हैं, बट दे आर रेयरली एलोकेटेड. या फिर हमारे पास एक और कैटेगरी है जिसमें काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि माशाल्लाह एग्ज़ाम जो है वो फेल कर लेते हैं तो कुछ 510 नंबर ले लेते हैं. कुछ लोग हैं जो कि इन केस फेल भी कर लेते हैं तो देयर नंबर्स आर मोर देन 630 या 650. तो ये स्कोर में डिफरेंस कैसे आता है? क्योंकि एग्जाम एक पॉइंट के बाद महज ये नहीं है कि आपने जस्ट क्वालिफाई करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉल इन द ग्रुप दैट यू एक्चुअली डिजायर. For example, I've been allocated into Police Service of Pakistan. So there is a difference between the score of a person who has been allocated into OMG or information group than a person who is into Pakistan administrative services or Police Service of Pakistan. मेरी 26th position है. I could have been allocated into PS, but since this was my first choice and this was my desired choice, so there wasn't any, let's say, hue and cry for that. But point is कि जो भी आपको आगे चलकर ग्रुप मिलता है, this is the point जो कि मैं अभी एजेंडा में डिस्कस करूंगा. स्कोर में को आपकी ये चीज़ मुतासर करती है.
उसके बाद फिर हम आपके जो क्वेश्चंस और आंसर्स जो है उनके ऊपर बात करेंगे, आपको कब अपीयर होना चाहिए, कब अपीयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सीएसएस के एग्जाम को या पीएमएस के एग्जाम को मैं खुद को जज करने के लिए अपीयर ना हो. इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, you must invest all of your energies that this particular exam requires from you in order to actually qualify it and, let's say, fulfill the dreams of your family and the people you love around. तो क्या प्री रेक्विजिट्स हैं, हम क्विकली बात कर लेते हैं कि एक तो आपको कुछ ना एक सेट ऑफ स्किल्स आना चाहिए. आपको रीडिंग स्किल्स आनी चाहिए कि अखबार कैसे पढ़ते हैं, रिसर्च पेपर कैसे पढ़ते हैं, किताब कैसे पढ़ते हैं. और रीडिंग के लिए मैं बात करूं तो रीडिंग मैक्स मैन, फ्रांसिस बेकन ने कहा था, रीडिंग मैक्स मैन, कॉन्फ्रेंस, रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. तो ये बेसिकली रीडिंग स्किल्स ही हैं जो कि आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में और एक ब्रॉड जो नॉलेज बेस है वो बनाने में हेल्प आउट करती हैं. रीडिंग स्किल्स के बाद आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट है राइटिंग स्किल्स. आप देखें कि काफ़ी लोग इस वजह से एग्जाम में फेल नहीं होते कि उनके आइडियाज़ अच्छे नहीं हैं. यकीनन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके आइडियाज़ उस तरीके से डेवलप नहीं है, इस वजह से वो फेल होते हैं. लेकिन कसीर तादाद कैंडिडेट्स की ऐसी भी है जो कि सिर्फ इस वजह से फेल होती है बिकॉज दे हैव पुअर राइटिंग स्किल्स. ऐसे राइटिंग की बात कर लें, प्रेसी कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग की बात कर लें. अब इन तमाम तर चीज़ों में दे एक्चुअली कीप ऑन फेलिंग, नॉट वंस, ट्वाइस और लेट्स से थ्राइस, बट कंटिन्यूअसली. सीएसएस भी फेल, पीएमएस भी फेल. तो राइटिंग स्किल्स जब तक आपकी ठीक नहीं है, इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग स्किल्स, तब तक आप ना एक अच्छे तरीके से ना तो एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, ना ही कोई एक बेहतर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. राइटिंग स्किल्स के बाद एक और इम्पॉर्टेंट है नोट्स मेकिंग स्किल्स. अक्सर कैंडिडेट सवाल पूछते हैं कि सर हमें क्या अपने अल्फाज में नोट्स बनाने चाहिए या लेट्स से हमें जो सीनियर्स के नोट्स हैं उन्हीं को यूटिलाइज करना चाहिए, या हम जो गाइडेड बुक्स हैं उन्हीं से जो है वो जो गिवन मटेरियल है वही लिख लें. व्हाट वुड बी दी परफेक्ट और पोटेंशियली द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू हम नोट्स मेकिंग करें. तो नोट्स मेकिंग के ऊपर हम थोड़ी सी अलहदा जो है वो पॉइंट हमने रखा हुआ है, उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि मैं डिटेल में बात कर लूँ. एनीवेज आई जस्ट वांट टू एस्टैब्लिश कि नोट्स मेकिंग जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आप चाहे सॉफ्ट फॉर्म में बनाएं या हार्ड फॉर्म में बनाएं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर प्रेजेंटेशन स्किल्स. मसलन प्रेजेंटेशन स्किल्स में हम देखते हैं कि क्या ज़रूरी है. एक इंडिविजुअल जो कि अपने आंसर लिखने के दौरान कोटेशंस, रेफरेंसेस, मैप्स और डायग्राम लिखता है, वो किस तरीके से रीडर की ओपिनियन को स्वे कर लेता है इन कंपैरिजन टू द अदर कैंडिडेट हु इज नॉट एक्चुअली इनकॉर्पोरेटिंग ऑल सच एंड सच थिंग्स. सो प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है आपकी वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जब भी आप इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें. अब सेकंड कंपोनेंट है आपका नॉलेज कंपोनेंट. नॉलेज कंपोनेंट में बेसिकली क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं कि बजाय कि आप ना जनरल रीडिंग करें, मसलन जो ऑडियंस है मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि वी हैव द डाइवर्स ऑडियंस, जिसमें काफ़ी लोग हैं जो कि बिल्कुल बिगनर भी हो सकते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने एक आधी अटैम्प्ट दी हुई है, वो लोग भी हो सकते हैं जो कि अभी स्क्रीनिंग पास करके बस अब तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं फॉर्मली. तो सब लोगों के लिए मैं आपको ये जनरल गाइडलाइंस रिकमेंड कर रहा हूँ कि rather than reading a book that is too vague and too general and that has nothing to do with your overall preparation या एक डायरेक्टली लिंक नहीं है, आप उसकी बजाय ना अपने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करें अपने यूनिवर्सिटी टाइम के दौरान या इस टाइम के दौरान. दैट वुड बी हेल्पफुल. हाँ अलबत्ता आपने अगर सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लिए हैं तो फिर आप दीगर चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, जैसे रिसर्च पेपर्स हैं, जैसे सजेस्टेड रीडिंग्स हैं. मिसाल के तौर पर हमें जो सीएसएस का सिलेबस दिया गया है उसमें तो बहुत सारे जो है वो किताबें रिकमेंड की गई हैं. मतलब अगर हम लिटरली पाकिस्तान अफेयर्स की किताबें पढ़ने बैठ जाएं तो आई डोंट थिंक कि आप 2 या 2.5 साल में पाकिस्तान के अफेयर्स का जो सब्जेक्ट है उसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज यू वुड हैव टू रीड एवरी बुक अगर हम उस लिहाज से देखें. सो rather than reading something that is too lengthy, too vague, we must be reading what is immediate, what is direct and what is relevant. तो नॉलेज तो बहुत वास्ट है ना, समंदर है. आपने प्रायोरिटाइज करना है कि विच नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ.
تو براڈلی نالج کو آپ ان کے جو سورسز ہیں آپ ان کو یہاں سے کیٹیگرائز کر لیں. اٹ وڈ ایڈ اے لاٹ آف ویلیو. آخر میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یا جو آن لائن سورسز ہیں ان کو بھی لک اپ کر لیں. دے وڈ آلسو ایڈ اے ویلیو ایڈیشن انٹو یور اوور آل نالج. ایک اور نالج کمپوننٹ میں بات کر لوں آپ سے کہ نالج آپ انڈیویجول ٹیچرس یا اکیڈمی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. کافی کینڈیڈیٹس پوچھتے ہیں کہ سر کیا وہ جوائن کرنی چاہیے, نہیں جوائن کرنی چاہیے, واٹ ایور. تو چونکہ میں بھی اس فیلڈ سے ایسوسیٹڈ ہوں اینڈ آئی ہیو بین ٹیچنگ فار لاسٹ 2.5 years, I would recommend you just one thing کہ آپ سے جو سبجیکٹ خود سے نہیں ہو رہا یا آپ اس لیول تک اسے پریپیئر نہیں کر رہے یا آپ کو پراپر ایک میکانزم نہیں پتا ایک سبجیکٹ کو پریپیئر کرنے کا, تو اٹ از فار بیٹر کہ آپ کسی ٹیچر کے پاس پڑھ لیں رادر دین آپ اس کے اوپر جو ہے وہ خود ٹرائی کر لیں. مثلا آپ اگر ایک سبجیکٹ خود تیار کر رہے ہیں جو کہ آپ کو ایک تو ڈائریکشن نہیں ہے, کانٹینٹ کیسے تیار کرنا ہے وہ پتا نہیں ہے, ٹاپکس کی ڈائنامکس کیا ہیں وہ پتا نہیں, اور خود آپ کے لیے سارے کانسیپٹس ہیں, تو ایسا سبجیکٹ جو کہ بجائے کہ آپ ٹریڈیشنلی آپ لیٹس سے اگر آپ 30 دنوں میں کر لیں وہ آپ سے 2 مہینے لے کے جائے گا. آپ بس یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ڈیورنگ پریپریشن ٹائم از یور ورسٹ انیمی. مثلا ہم ابھی جو ہے وہ مارچ میں کھڑے ہیں نا, مارچ کی 15-16 تاریخ ہے, ابھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں یا 18 تاریخ ہے, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو بہت ٹائم ہے, سال بہت اچھی تیاری ہو سکتی ہے, وی کین ریڈ اینی تھنگ وی وانٹ. بٹ بلیو یو می جب آپ ایک سبجیکٹ کو دیکھیں نا, آپ ایک چھوٹی سی ٹائم لائن بنا لینا, تو یو وڈ فائنڈ ویری لٹل ٹائم. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ نومبر اور دسمبر آ جائے گا, اینڈ یو وڈ بی ان اے پوزیشن جس میں بندہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یار مجھے اس سال اپیئر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اینڈ زیادہ تر لوگ پھر نہیں اپیئر ہوتے. This has exactly happened this year and this has been happening since the day competitive exam CSS has been put into the place. تو میں نالج کمپوننٹ کے جو سورس کی بات کر رہا تھا کہ whether to choose yourself over any individual teacher or an academy, that's entirely your discretion. That should entirely be your well informed decision کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے اور آپ سے خود سے چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی, اور کیا آپ اس qualitative لیول تک وہ چیز کر بھی پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. Okay, then let's talk about the planning. This is important part of your overall preparation. Planning includes following things. Phase 1, it includes knowledge phase یا knowledge learning phase. مثلاً ہم مارچ میں کھڑے ہیں ابھی, تو آپ کا جو یہ فیز ہے اس میں کیا کیا آپ نے چیزیں کرنی. آپ نے سب سے پہلے چیزیں جو کرنی ہے وہ یہ ہیں کہ آپ نے کمپلسری سے تیاری شروع کرنی ہے, اور کمپلسری میں مور اور لیس میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ پاکستان افیئر سے تیاری شروع کریں, اور ساتھ میں چونکہ آپ اخبار بھی پڑھتے ہیں تو کرنٹ افیئرس بھی نا ساتھ ساتھ آپ پریپیئر کریں, اس کے بعد آپ اسلامیات کر لیں, اور پھر اس کے بعد آپ اپنا آپشنلس کی طرف موو کریں. تو اگر ہم اس کی بیس لائن بنا لیں تو فرسٹ فیز میں آپ نے کرنا یہ کہ اسٹارٹ وتھ یور کمپلسری سبجیکٹس فالوڈ بائی یور آپشنل سبجیکٹ. اب اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وائی کمپلسری فرسٹ. آپشنلس میں دیکھیں ابھی آپ کے پاس وہ شاید نالج بیس نہ ہو اگر آپ ایک نئے کینڈیڈیٹ ہیں. اب مسائل کیا کیا آ جاتے ہیں آپ کے پاس مسائل یہ آ جاتے ہیں کہ نمبر 1 is whether to choose political science or international relations, whether to go for criminology or international law, whether to go for gender studies or for example sociology, whether to go for governance and public policy or public administration. تو پہلا میرا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو کلیئرٹی ایز ٹو واٹ شوڈ بی our subjects. اوور آل ہمارے آپشنس کیا ہونے چاہیے. سیکنڈ, ہمیں لیٹس سے ان سبجیکٹس کا الٹیمیٹلی پاکستان کے ساتھ تو کنیکشن جو ہے وہ بنانا ہی ہوتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پھر پاکستان افیئرس کی پہلے بیس ہو. اینڈ تھرڈلی یہ ہے کہ کمپلسری تو دیکھیں وہی رہیں گے, آپشنلس آپ کے چینج بھی ہو سکتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب اکتوبر میں رزلٹ آتی ہے تو کافی لوگ پھر بیک آؤٹ کر جاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں سبجیکٹ جو ہے وہ پریپیئر نہیں کرنا. اور ناؤ دیٹ از ویری ٹرکیئر پوائنٹ کہ لیٹس سے ہم 2-3 مثالیں لے لیتے ہیں نا کہ 2018 سے ہم شروع کر لیتے ہیں, پھر 2020 تک ہم بات کر لیتے ہیں. تو 2018 میں یو ایس ہسٹری کا بہت برا اسکور تھا. کافی لوگوں نے کیا کر لیا کہ 2019 میں یو ایس ہسٹری نہیں چوز کی. اب 2019 میں یو ایس ہسٹری کا سب سے بہت زیادہ اسکور تھا, لیٹس سے میرے خود اپنے نمبر تھے اس میں 87. تو
2020 में कैंडिडेट्स के लिए बड़ा मसला हो गया कि यार हमने यूएस हिस्ट्री क्यों जो है वो स्किप की थी, हमें तो वो उठानी चाहिए थी। लेकिन फिर 20 का पेपर ऐसा आ गया कि बड़े कम नंबर आए एंड पीपल वर डिसअपॉइंटेड। काफ़ी लोगों ने फिर जो है वो 2021 के लिए जो अभी अटैम्प्ट दिए, फिर यूएस हिस्ट्री था और फिर पेपर जो है बड़ा टफ था। तो इससे हम जो चीज़ अखज़ कर रहे हैं ना वो ये है कि आपके ऑप्शंस जो है ना उनके बारे में इफ्स एंड बट्स बहुत सी आती रहती हैं अंटिल एंड जब तक आप फिर एक फाइनल डिसीजन के ऊपर पहुंचे, तब तक आप सिंपली करंट जो अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं ना उनकी प्रिपरेशन करें। तो एक बात आपने ये हो गई। सेकंड, आपने उन तमाम तर सब्जेक्ट्स के नोट्स बना लेने हैं। थर्ड, आपने ये करना है कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके आपने एमसीक्यूज प्रिपेयर करने। एमसीक्यूज आर गेम चेंजर, पर्टिकुलरली व्हेन सीएसएस इज द नंबर गेम। आपके जितने अच्छे नंबर होंगे आपकी जो गेम है वो इतनी ऊपर जाएगी। आपके जितने अच्छे नंबर हैं आप उतना इफेक्टिवली दीगर लोगों से बहुत आगे होंगे। और आखिरी चौथा काम ये करना है कि एक टाइमलाइन बना लें कि आपने एक सब्जेक्ट कितने टाइम में करना है। आइडियली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 1 महीने में एक सब्जेक्ट पूरा कर लें। देखें अभी 2 महीने गुजर गए, पीछे हमारे पास 10 महीने, 1 महीना रमजान का आ जाएगा तो 9 महीने। तो 9 महीनों में आप देखें कि आपके 9 सब्जेक्ट्स तो पूरे होने चाहिए ना। साथ आप एक कोई जनरल साइंस एंड एबिलिटी का एक टॉपिक करते जाएं। बाकी एक अंग्रेजी आपने साथ साथ लेके चलनी होगी। तो फर्स्ट फेज में आपने डिटेल नोट्स बना लिए। सेकंड फेज आपका हो जाएगा रिवीजन फेज। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसी टाइमलाइन बना लें कि 7 महीनों में आप अपना 8 महीनों में अपने जो नोट्स है ना वो मुकम्मल कर लें, ताकि आपके पास 1-1.5 महीना रिवीजन के लिए भी मौजूद हो। अगर आपने नॉलेज जो है वो जस्ट गैदर की है, कॉन्सेप्ट्स लर्न किए हैं, तो यकीनन कुछ फ़ायदेमंद है, लेकिन जब तक वो कंसोलिडेटेड नहीं है, उनका कोई ऐसा यूज़ नहीं है। तो उनका प्रॉपर यूज़ तभी हो सकता है जब आपने वो तमाम तर चीज़ें रिवाइज़ की। काफ़ी सारी चीज़ें जो कि क्रैम करनी पड़ती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको कंसोलिडेट करना होता है, आप रिवीजन फेज़ से अपने आप को गुज़ारें। और रिवीजन में आपने क्या करना है, लेट्स से आपने जो 10 पेजेस का एक टॉपिक तैयार किया था फेज़ 1 में, आपने फेज़ 2 में जब पहुंचना है तो उसे 1/3 कर लेना है। एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन को ज़्यादा एक्सेलरेट करना है और कोशिश ये करनी है कि कितने सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स एक दूसरे से ओवरलैपिंग हैं। तो आपने उनकी एक लिस्ट बना के ना उनको इकट्ठे जो है वो रिवाइज़ करना है। मसलन काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और आईआर में रेलेवेंट हैं एक दूसरे के साथ। सो व्हाट यू कैन डू इज के यार ये सारे रेलिवेंट हैं एक जगह पे, और उनको फिर आप उसी जगह पे तैयार करें। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इज योर नॉलेज प्रोडक्शन फेज। आप जब तक नॉलेज को प्रोड्यूस करने के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, जब तक आप पेपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे, यू वुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू क्रिएट अ डिफरेंस इन योर स्कोर। अब इस फेज में आपने बेसिकली मॉक टेस्ट भी देने हैं। इंडिविजुअल टीचर्स के पास आप देना चाहें तो दैट विल बी ओके, अकेडमीज में देना चाहें दैट विल बी ओके, दैट्स एंटायरली अप टू यू। अपने आप को देना चाहें, किसी अच्छे दोस्त को देना चाहें, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज सेम, मीन्स कैन बी डिफरेंट बट द एंड इज सेम। ओके, उसके बाद फिर जो अगली चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है, मसलन हमारे पास हो गई आपकी स्किल्स, नॉलेज, उसके बाद हमारी प्लानिंग, चौथी चीज़ है हमारी एटीट्यूड। कि हम सीएसएस दिखाने के लिए जो है वो प्रिपरेशन दिखावे के लिए नहीं कर रहे। मसलन इट वुड बी वेरी डिसअपॉइंटिंग टू एक्चुअली इवन से दैट कि काफ़ी लोग हैं जो कि मैं टाइम पास करने के लिए सीएसएस की तैयारी करें या इस सोच के साथ तैयारी कर रहे हैं कि चले अगर सीएसएस नहीं हुआ तो कुछ और हो जाएगा। अगर आपका सीएसएस नहीं हुआ तो कुछ और भी बड़ी मुश्किल से ही होगा, क्योंकि आपका रवैया ही अपने एग्जाम के साथ ही है। आपका जिंदगी का अगर आप समझते हैं कि इतना बड़ा मकसद है, व्हाई नॉट टेक इट सीरियसली, व्हाई जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो अगर आपके वाकई जो ड्रीम्स हैं, जो इंस्पायरेशंस हैं, दे आर एसोसिएटेड विद दिस एग्जाम, गिव द बेस्ट ऑफ योरसेल्फ। अब एटीट्यूड में क्या चीजें आएंगी मैं आपको रिकमेंड करूँ। नंबर 1 है कि कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करें। मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे अच्छे तरीके से पढ़ें, संडेज अपने जो है वो रेस्ट में यूटिलाइज करें। सेकंड ये है कि साबित कदम रहें। मसलन काफ़ी सारी ऐसे स्टेजेस आती हैं जिसमें आपको पर्सनल लेवल पे, फ्रेंड सर्कल के लेवल के ऊपर, फैमिली के ऊपर काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज आ जाएं कि आपको शायद गिव अप करना पड़े। हालात ऐसे उभर आते हैं कि आप फिर सीएसएस की तैयारी से फट अप आ जाते हैं, या फिर रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं आ रहे होते जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे होते हो।
تو ایسی صورت حال میں the only option that many people are left with is back out. No, you don't have to back out. Sometimes you can retreat, but a retreat should not be equated with backing out altogether. آپ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. Even the leopards retreat, but the retreat should be for the larger objective, and that would be to jump further, to jump higher. اس کے بعد ایک ایٹیٹیوڈ میں آپ ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ آپ ہمیشہ شکر کے ساتھ گریٹیٹیوڈ والا ایلیمنٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے جتنا کام کیا ہے اپنی پوری توانائی کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، دیٹ از مور دین انف. آپ اسے زیادہ نہیں کر سکتے تھے اینڈ یو شوڈ بی ہیپی فار دیٹ. اب اس کے بعد ہیں چھوٹی چھوٹی اور چیزیں ہیں، ان کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سبجیکٹ کیسے پریپیئر کرنا ہے. آپ نے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک کورس آؤٹ لائن ہونی چاہیے، 5 پیپرس ہونے چاہیے. کن بھی 2 سورسز سے آپ کوشش کریں کہ اس سبجیکٹ کو پریپیئر کریں. اس کے بعد نوٹس میکنگ کریں، لیندی نوٹس بنائیں پہلے فرسٹ فیز میں جو بنائیں، پھر شارٹ نوٹس بنائیں اور کوشش کریں کہ انہیں کنٹینیوسلی ریوائز کرتے جائیں. ریویژن کے بغیر آپ اس پہ کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر عبور نہیں حاصل کر سکتے. اور پیپر اٹیمپٹنگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ تو بالکل ہی انٹیگرل پارٹ ہے اوور آل آپ کے سبجیکٹ کی پریپریشن کا. پھر ہم آتے ہیں کہ نوٹس میکنگ کیسے کرنی چاہیے. آپ نے کرنا یہ کہ یو ہیو ٹو سلیکٹ اے ٹاپک. مثلاً آپ نے، میں مثال دیتا ہوں، فلسطین ایشو آپ نے جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا. آپ نے اس ایشو کو مختلف اینگل سے پڑھ لینا ہے، جو پاسبل اینگلس ہو سکتے ہیں. میکرو پرسپیکٹو بھی پڑھ لینا ہے آپ نے، مائکرو پرسپیکٹو بھی کرنا ہے. اور پھر جیسے ہی آپ نے سارا کچھ پڑھ لیا ہے، بس آپ نے اب لکھنا شروع کرنا. اپنے الفاظ میں لکھ لیں جب آپ کی انگریزی ٹھیک ہو. اور جو گیون کیا کہیں گے ہم اسے، گیون جو بک ہے اس کی لینگویج کو بارو کریں اگر آپ کی اپنی انگریزی ٹھیک نہیں ہے تو. اس کے بعد اپنے جو بھی نوٹس ہیں نا اس میں میکسیمم ہیڈنگس ڈالیں. جب تک آپ میکسیمم ہیڈنگس نہیں لکھیں گے یو ول ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو ایکچولی رائٹ دا نوٹس ان دا بیسٹ پاسبل فارم دیٹ یو ادروائز ریکوائرڈ. اس میں ٹولس آف پریزنٹیشن ایڈ کر لیں جو کہ ہم نے بات کی کہ لیٹس سے ریفرنسز ہوں، کوٹیشنس ہوں، ڈائیگرامس ہوں، میپس ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور پھر آخر میں یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹاپک آپ نے تیار کیا ہے اس کو بیس بنا کے کہ آپ 5 پیپرس میں جتنی بھی چیزیں دی گئی ہیں آپ کو آ رہی ہیں یا آپ کو نہیں آ رہی. تو ان کیس آپ کو آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نوٹس اچھے بنائے. ان کیس آپ کو نہیں آ رہی تو آپ پھر کہیں گے نہیں آپ کو اس میں جو ہے وہ چیزیں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ ہارڈ فارم میں بھی بنا سکتے ہیں نوٹس، آپ سافٹ فارم میں بھی بنا سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن یور لیول آف کمفرٹنیس. پھر جن لوگوں نے فار ایگزامپل اٹیمپٹ دے دی ہے تو اس کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نوٹس کو کنٹینیوسلی اپڈیٹ کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ ریڈنڈنٹ ہو جائیں، وہ ریلیونٹ ہو جائیں، ان کا کوئی براڈر تک نہ بنے. تو دیٹ وڈ بی امپورٹنٹ کہ آپ اپنے نوٹس کو اپڈیٹ کریں، نالج گیدر کرنے کی کوشش کریں. نالج ایک ایولیوشنری پروسیس ہے، ایک دن میں سارا نہیں ہوتا. یو نیڈ اے کنسسٹنٹ ایفرٹ ایکچولی گیدر دیٹ ویری نالج. پہلے آپ نے لیندیئر نوٹس بنانے ہوں گے، پھر آپ نے شارٹ فارم میں بنانے ہوں گے. اچھا نیکسٹ از آپ نے کیا روٹین بنانی ہے. میں روٹین کو 2 حصوں میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک ہے آپ کی 5 سے 6 گھنٹے کی روٹین جس میں آپ کنسسٹنٹلی انگلش کے اوپر کام کریں، اور ایک ہے 5 سے 6 گھنٹے کی روٹین جس میں آپ ایک سبجیکٹ کو ایک ٹائم کے اوپر کریں. مثلا آپ پاکستان افیئر تیار کریں، پھر کرنٹ افیئر، پھر اسلامیات. یہ سبجیکٹس چینج ہوتے جائیں گے لیکن آپ کی انگریزی سیم رہے گی. اب انگریزی سیم ہوگی لیکن انگریزی کے اندر جو کمپوننٹس ہیں وہ چینج ہوں گے. بگنر لیول پہ آپ پہلے گرامر سے شروع کریں، پھر آپ پارٹس آف اسپیچ کریں، نیریشن، ٹرانسلیشن، پنکچویشن، بیسک ووکیبلری کے اوپر کام کریں. دیٹ شوڈ بی فالوڈ بائی another thing دیٹ از آپ پھر پریسی اور کمپریہنشن کے اوپر کام کر لیں اور ساتھ ہی انگلش ایسے کے اوپر کام کریں. اگر آپ کنٹینیوسلی لکھتے رہیں گے تو بلیو یو می یو وڈ ڈو ونڈرز. اگر آپ لکھیں گے نہیں تو یو وڈ ڈو نتھنگ. تو لکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے انگریزی کے اوپر، تبھی جو ہے وہ آپ گرفت حاصل کر سکتے ہیں جب آپ میکسیمم لکھیں گے. نہیں لکھیں گے تو اور نہیں اسیس کرائیں گے تو اٹ وڈ ناٹ ہیلپ یو ایٹ آل. کیسے آپ اپنے جو اس کو پیپرس میں ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں. پہلا آپ یہ ہے کہ اپنے سبجیکٹس اچھے طریقے سے پریپیئر کریں اور اس میں ہمیں بات کریں نوٹس میکنگ کے تھرو. سیکنڈ آپ ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں اپنے ایم سی کیوز کے تھرو. تھرڈ آپ جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کا جو پیپر ہے کافی لوگوں سے لائٹ لیتے ہیں، آپ نے اس کو سیریس لینا ہے اس کے تھرو. اور فائنلی یہ ہے کہ آپ نے
तमाम तर पेपर्स की जो पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स हैं इनके ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, तो दैट वुड एक्चुअली क्रिएट अ डिफरेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। कब अपीयर होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अपने अब जो अटेम्प्ट्स हैं एक तो जहन में रखना है कि 27-28 साल की उम्र में नहीं देने। आइडियल सिचुएशन ये, उसमें प्रेशर आपको आ जाता है वैसे ही कि आपने तो वैसे ही देना है ना, बाय डिफॉल्ट आपने अपीयर होना ही है। कब देने चाहिए? नंबर 1, एक तो आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ से एक टाइमलाइन होनी चाहिए कि व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर एंड व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू अपीयर। मसलन आइडियली ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी के दौरान कुछ तैयारी होनी चाहिए, उसके बाद आप फ़ौरन अपीयर हो जाएँ, 1 साल का गैप लेके। आपने यूनिवर्सिटी में कुछ भी नहीं पढ़ा तो इट्स अगेन ओके, 16 मंथ्स की आप प्रिपरेशन करें। 6 महीने की भी लोग करते हैं, आप देखें सीएसएस जो हमारे साथ क्वालिफ़ाई करते हैं लोग, वो फिर अपनी बात को सेल करने के लिए झूठ भी बोलते हैं लोगों के साथ कि जी मैंने तो 4 महीनों में तैयारी की और बस मैं तो जी क्वालिफ़ाई कर गया। आई थिंक 4 महीनों में तो नहीं हो सकती। तो ऐसी सूरत हाल में आई वुड रिकमेंड कि 15 से 16 महीने ना बड़े लग जाते हैं आराम से कि आप अच्छी एक प्रिपरेशन करें और आपको जब तक प्रॉपर्ली डायनामिक समझ आ जाए। अब इसमें ये कि ये चीज़ रिलेटिव भी है। मसलन काफ़ी लोग हैं जिन्हें बातें जल्दी समझ आ जाती हैं, काफ़ी लोग हैं जिन्हें बातें नहीं आती समझने। मसलन एक इंडिविजुअल जिसकी अंग्रेज़ी अब आज ही बहुत अच्छी है, तो वो तो अगले हफ्ते से ऐसे लिखना शुरू कर लेगा। लेकिन अगर एक कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी आज अंग्रेजी ठीक नहीं है, तो उसको 6 महीने तो अंग्रेजी दुरुस्त करने में लग जाएँगे। तो पहला मतलब आपको प्रीरेक्विज़िट की अगर तरफ आप दोबारा से लुकअप कर लें, तो अपीयर होने के लिए पहले तो आपको वो तमाम तर प्रीरेक्विज़िट्स जो मैंने बताए हैं, वो आपने पूरे किए हों। नॉलेज कंपोनेंट के ऊपर आपकी गिरफ्त हो, प्लानिंग आपने सही की हो, आपका एटीट्यूड ठीक हो और आप अटेम्प्ट को सीरियस लें, अटेम्प्ट को ज़ाया ना करें। मैंने सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था सीएसएस, पहली अटेम्प्ट मैंने थोड़े टाइम में दी थी, 5 से 6 महीने की प्रिपरेशन में, बट बिकॉज़ आई वाज़ अ रेगुलर स्टूडेंट इन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि चलें बाकी तो नसीब की बात है, वी कैन डू समथिंग कि इट कैन बी क्वालिफाइड। तो नहीं हुआ, इस्लामाबाद फेल हुआ इसमें। लेकिन चलो फिर 3 नंबर से 1 सब्जेक्ट फेल हुआ, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। आपके 5-5 6-6 सब्जेक्ट्स आप देखें लोगों के फेल होते हैं। दैट डज़न्ट लुक गुड ना, कि आपने तैयारी की ही नहीं थी, आप महज़ अपीयर हो गए। यहाँ बड़े-बड़े जार्गन्स जो है वो बोल रहे हैं और आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। आपको बेसिक्स का ही नहीं पता, तो फिर आप इतने बड़े जो है वो लेवल पे किस तरह की इतनी इर्रेलेवेंट बातें कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप ना ज़हन में रख लें कि आपकी तब तब जो है वो प्रिपरेशन मुकम्मल है, जब आपने सिलेबस को, कोर्स को अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लिया है, या ये जो तीनों स्टेजेस हैं, वो आपने अच्छे तरीके से गुजार लिए। अटेम्प्ट एक नेमत है आपको ना कामयाब होने के लिए, इसको ज़ाया मत कीजिएगा। नो वन नोज़ द वर्थ ऑफ द वाटर टिल द वेल इज़ ड्राई, ये वही वाली बात है। आप तब तक ये जो है वो नहीं समझ सकते कि आप अटेम्प्ट की क्या अहमियत है, जब तक आप रिस्क को सीरियस नहीं लेंगे। अब ये एक बेसिक है, हम ओरिएंटेशन मैंने प्लान की थी कि चलें आप लोगों से थोड़ी-सी बात हो जाएगी इस चीज़ के ऊपर। हम प्रॉपर जो सेशन है रेगुलर सेशन जिसे हम कर रहे हैं, वो सिर्फ़ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए कल शुरू होगा। अब जो लोग आप में से इंग्लिश एसे का सेशन जॉइन करेंगे, वो कल 5 बजे ज़ूम की सीआईडी के थ्रू हमें जॉइन करेंगे। अब कल हम फिर पढ़ेंगे कि जो एसे का सेशन है वो है क्या? एसे में हम क्या-क्या पढ़ेंगे? ब्रीफ में आपको ओवरव्यू ये दे देता हूँ कि 15 से 16 हम लेक्चर्स करेंगे उसमें। आपके पहले मैं ये कहता था कि एक पैराग्राफ लिखवा के फिर चेक करता था, या फिर एक आउटलाइन लिखवा के फिर चेक करता था। अब मैं इसको थोड़ा-सा चेंज इस तरीके से कह रहा हूँ कि आपकी टोटल जो है वो 6 से 8 आउटलाइन्स वो चेक होंगी। उसके बाद 3 से 4 इंट्रोडक्शंस चेक होंगी। आखिर में आपके 2 फुल लेंथ एसेस चेक होंगे। ये हम पूरे ऐसे सेशन में जो है वो सिनेरियो रखेंगे और 16 डेज़ विदाउट एनी लेट्स से ब्रेक और हेजिटेशन आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी। 2 दिन हम डेडिकेट करेंगे जिसमें हम रीडिंग स्किल्स को भी देख लेंगे, जिसमें हम पास्ट पेपर्स को भी देख लेंगे, कंटेंट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ को देख लेंगे। पर्टिकुलरली जो 2021 का एसे का पेपर है, उससे जो है वो हम देख लेंगे। बाकी इंग्लिश एसे की जो स्पेसिफिक बातें हैं, वो मैं फिर कल जो सेशन है उसमें करूँगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कंबाइंड सेशन ऑफ करंट एंड पाकिस्तान अफेयर्स। अब इनका भी अगेन सिलेबस एक तो ओवरलैपिंग है। इनकी क्लास होगी कल 6 बजे।
40 से 45 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इसमें। कल वाली क्लास में हम पहले तो ये समझेंगे कि पाकिस्तान अफेयर्स को हम प्रिपेयर कैसे करें, करंट अफेयर्स को हम प्रिपेयर कैसे करें, और अभी से जो मतलब इस साल से मैं इस चीज़ के सेशंस ले रहा हूँ, उसमें ये होगा कि आपका लेट्स से ये महीने का सेशन होगा, 22 लेक्चर्स होंगे उसमें, तो हम इसमें 2 टेस्ट रख लेंगे आपके। मतलब आई जस्ट वांट टू बी वेरी फ्रैंक एंड एक्चुअली टेलिंग यू के व्हाट आर न्यू डायनामिक्स, और मैं किस तरीके से आपको लेके चलूँगा, ताकि आपको पहले दिन पे ही पता हो बिफोर यू एक्चुअली साइन अप फॉर दिस सेशन। तो टोटल हम 40 टू 45 टॉपिक्स करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि उन्हें उस तरीके से करें जिस तरीके से पास्ट पेपर्स में पूछे भी गए हैं टॉपिक्स, और उनके ऊपर कोई नई डिबेट भी है। तरीका हमारा ये होगा कि पहले लेक्चर होगा, उसके बाद में फिर क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आपके जो रेगुलर क्वेश्चंस होंगे या कंटेंट होगा वो शेयर किया जाएगा। जो अपडेटेड आर्टिकल्स होंगे, रिसर्च पेपर्स होंगे, या मेरे अपने नोट्स होंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, वो भी आप लोगों से शेयर किए जाएंगे। पढ़ाने के मतलब दोनों मेथड्स हो सकते हैं। एक मेथड ये कि स्लाइड पे आपको पढ़ाया जाए, एक मेथड ये होता है कि आपको बस मैं वीडियो पे आ जाऊं और आपको अपने नोट्स हाथ में लेके समझाता जाऊं। मेरे नज़दीक स्लाइड वाला मेथड जो है ना वो बेहतर है, ताकि आप लोग फिर स्क्रीनशॉट लेके कम से कम कुछ ना कुछ बाद में लिख लेंगे। काफ़ी जो मेंटोर्स हैं वो फिर इस स्लाइड्स पे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि यार कहीं सारी चीज़ें ना पता चल जाएं कैंडिडेट्स को। सो आई डू नॉट बिलोंग टू दैट बेसिकली लॉट। मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग सीखें। मतलब हमारे लिए तो बड़ा बायसे फ़ख्र ये बात होती है कि काफ़ी सारे मुतवसत तबके के जो लोग हैं, उनके लिए सीएसएस एक अच्छा रास्ता है निकलने का, एंड वी मस्ट एनकरेज दैट। ठीक है, तो ओरिएंटेशन ये है। इसके हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं ना अगले 10 मिनट आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स लूँगा। उसके बाद जो लोग शामिल होना चाहते हैं हमारे सेशन में, दे मस्ट टेक्स्ट मी और टेक्स्ट द गिवन नंबर ओवर व्हाट्सएप। तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड किया जाएगा। इन केस हमारी टाइमिंग में कभी कभार चेंज हो जाती है, रद्दोबदल हो जाता है, तो यू विल बी अपडेटेड फॉर दैट। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ आई वांट टू लिसन यू। आप लोगों के क्या सवाल हैं, क्या आपके ख्याल हैं? ओके, कि एक सवाल है कि सर अगर हम यूनिवर्सिटी के दौरान तैयारी शुरू करें तो हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम तो आप राइट लें या लेफ्ट लें वो आप ही को पता होगा, लेकिन समझने के हवाले से कि आपने क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, तो गो विद द इंग्लिश। आप पहले अंग्रेजी की तैयारी करें। वंस यू आर डन विद इंग्लिश देन गो फॉर योर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स फॉलोड बाय ऑप्शन। साजिद अली, उसका क्वेश्चन है कि सर हमें इस्लामियात के जो नोट्स हैं उनके ऊपर जो है वो कितना टाइम लगाना चाहिए? अब देखें, इस तरह के जो क्वेश्चन